تو دوستو فلم کی شروعات میں ہم ایک 16 سال کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام مری ہوتا ہے، جو سمندر کنارے بنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہے، جہاں سب لوگ تقریباً گزارا کرنے کے لیے فشنگ کرتے ہیں، یعنی مچھلیاں پکڑنے کا کام۔ ابھی فی الحال وہ اپنے چیک اپ کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، کیونکہ اچانک پتہ نہیں کیسے اس کے جسم پر ایک نشان بن گیا تھا، حالانکہ اسے چوٹ بھی نہیں لگی تھی۔ ڈاکٹر اچھے سے اس کا چیک اپ کرتا ہے، خاص طور پر اس کے ناخن اور دانتوں کا، پھر کہتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، اس نشان پر اتنا دھیان نہ دو، یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوستو مری جب گھر آتی ہے ہم اس کی فیملی کو دیکھتے ہیں، جس میں اس کے صرف موم اور ڈیڈ ہوتے ہیں۔ اس کی موم کی حالت ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ پیرالائزڈ ہے اور بالکل بھی چل پھر نہیں سکتی، نہ ہی وہ بول سکتی ہے، ہر وقت ویل چیئر پر ہی رہتی ہے، اسی لیے انہیں کھانا کھلانا، نہلانا، کپڑے بدلوانا سب کچھ مری ہی کرتی ہے۔ رات کو جب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی تو اس کی نظر اپنے سینے پر جاتی ہے، جہاں وہ عجیب سا نشان بنا تھا۔ وہ نشان کم ہونے کے بجائے اب اور بڑا تھا، اور پھر ایسے ہی کچھ دن اور گزر جاتے ہیں، اور اب مری کیونکہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے اور ان کے مالی حالات بھی بس کچھ ٹھیک ہی تھے اور خاص اچھے نہیں تھے، تو اسی لیے وہ ایک فش پونڈ پر اپنی جاب کرنا شروع کر دیتی ہے، جہاں پر مچھلیاں پیک کی جاتی تھی۔ آج جاب پر اس کا پہلا دن تھا، جہاں پر کام اسے فش پوائنٹ پر مینیجر سکھا رہا تھا۔ وہاں پر ایک برا ورکر تھا جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ فش پوائنٹ پر دور کھڑا ہو کر مری کو عجیب عجیب نظروں سے گھورتا ہے۔ وہاں پر مری کی نظر ایک ڈیلیوری بوائے پر گئی، جو ہر گھر میں مچھلیاں سپلائی کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس کا نام ڈینیل ہوتا ہے۔ وہ بھی مری کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دونوں پہلے ہی نظر میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ تو اب ڈینیل جب مچھلیاں اٹھا کر جا رہا تھا تو اس برے ورکر کی وجہ سے ڈینیل نیچے گر گیا، جس سے اس کی ساری مچھلیاں بھی نیچے گر گئی۔ یہ دیکھنے کے بعد مری جلدی سے اس کی مدد کرنے آتی ہے اور اس طرح ان دونوں کی بات چیت شروع ہو گئی۔ اس کے بعد مری جب خراب مچھلیاں باہر پھینکنے کے لیے گئی تو وہ برا ورکر اس مری کو بھی مچھلیوں کے کچرے میں پھینک دیتا ہے، جو بری طرح خراب سڑی مچھلیوں اور گندے پانی سے بھرا ہوتا ہے۔ خیر تھوڑی ہی دیر میں مری وہاں سے باہر نکل آتی ہے، جہاں باقی ورکر بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سب وہ حیران ہونے کے بجائے ایسے کھڑے تھے جیسے کوئی نارمل چیز ہو، اور تو اور اوپر سے وہ تالیاں بجانے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کام پر پہلے دن سب کا ویلکم ایسے ہی ہوتا ہے۔ کام ختم کرنے کے بعد جب وہ گھر آئی، وہ دیکھتی ہے کہ آج بھی ہمارے گھر ایک ڈاکٹر آئی ہوئی ہے، جو اس کی موم کو لے کر بڑی ہی سیریس بات کر رہی ہوتی ہے اور اپنے ساتھ ایک فائل بھی لائی ہوتی ہے، جو ابھی انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ لیکن دوستو جیسے ہی مری اندر آتی ہے، وہ فائل کو اپنے باکس میں بند کر دیتی ہے، جیسے وہ سب کچھ مری سے چھپا رہے ہوں۔ مری اپنے ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، سب خیریت ہے، موم ٹھیک تو ہیں، آج کیوں آئے ہیں ڈاکٹر؟ اس پر اس کے ڈیڈ کہتے ہیں وہ دراصل بیٹا تمہاری موم کا ہاتھ تھوڑا سوج گیا تھا، کیونکہ ان کو ہر روز انجیکشن جو لگتے ہیں، تو اسی چیز کا چیک اپ کرنے آئے ہیں وہ۔ اس کے بعد ڈاکٹر اور اس کی موم اس کے ہاتھ کو چیک کرنے لگے۔ اس بیچ موقع پا کر مری وہ فائل چرا لیتی ہے اور اوپر بھاگ جاتی ہے۔ اوپر بیٹھ کر وہ اس فائل کو چیک کرتی ہے، جس میں سے ایکس رے اور کچھ لوگوں کی ڈیٹیل والے کاغذ اور کچھ عجیب طرح کی تصویریں ملتی ہیں، جس میں بہت بڑے اور ڈیلی زخموں کے نشان بنے ہوتے ہیں۔ تو دوستو اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی، نیچے سے اس کے ڈیڈ آواز لگاتے ہیں، تب مری جلدی سے اس فائل کو چھپا کر نیچے آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر جا چکا تھا اور مری کے ڈیڈ اس کی موم کے ہاتھ میں ڈیلی والا انجیکشن لگا رہے تھے، جس سے اس کی موم کی حالت ٹھیک رہتی ہے۔ رات کو جب مری برتن دھو رہی تھی تو اسے عجیب سی آواز آتی ہے۔ اس نے جب چپکے سے موم ڈیڈ کے کمرے میں دیکھا، وہاں بہت ہی عجیب نظارہ ہوتا ہے۔ اس کے ڈیڈ اس کی موم کے پورے جسم پر کریم لگا کر شیونگ کرتے ہیں، یعنی بال اتار رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز مری کو عجیب تو لگی، لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ ضرور موم کے بال بڑے ہو گئے ہوں گے۔ رات کو جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو اسے عجیب سے سپنے آنے لگتے ہیں، جیسے کہ ایک ڈراؤنی سی عورت جو خون سے لت پت ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس سپنے کے بارے میں زیادہ نہ سوچ کر کام پر چلی جاتی ہے، جہاں اس کی اور ڈینیل کی بات اور زیادہ بڑھنے لگتی ہے۔ اور جو ڈینیل کا ساتھی ہوتا ہے وہ تھوڑا عجیب ہوتا ہے، وہ مری کو کہتا ہے کہ ڈینیل سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرے۔ مری اس کی بات کو انسنی کر کے کھانا کھانے چلی جاتی ہے۔ وہاں پر بھی وہ برا ورکر اس کو تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ وہ مری کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، جنہیں وہ مسلسل نظر انداز کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس ورکر نے اس کی موم کے خلاف غلط بات کی تو مری سے برداشت نہ ہوا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا، اسی لیے وہ گلاس اٹھا کر اس کے منہ کی طرف پھینکتی ہے، لیکن عین ٹائم پر برا ورکر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گلاس اس کے چہرے پر لگنے سے بال بال بچتا ہے۔ اس کے بعد اس ورکر کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور ان دونوں کی دشمنی اور بڑھ جاتی ہے، لیکن مری کی اس بات پر فش پوائنٹ کا مینیجر بہت ہی خوش نظر آتا ہے اور کہتا ہے بہت اچھا ہوا، ایسے اسے منہ زور جواب ملنا چاہیے۔ اب شام کو مری جب گھر جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، تبھی وہ برا ورکر اپنے دوست کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے مری سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ اس وقت وہاں وہ اکیلی موجود تھی۔ وہ دونوں اسے پکڑ لیتے ہیں
और बेचारी के साथ अजीब सा बर्ताव करना शुरू करते हैं। जबरदस्ती जब उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे तो हम मरी के जिस्म में अजीब सा बदलाव साफ साफ देख पाते हैं, जैसे कि उसकी वेन्स ऊपर उभरना शुरू हो जाती हैं। फिर नीचे बिठाकर उसका मजाक बनाने के लिए बुरा वर्कर उसको जबरदस्ती कच्ची मछली खिलाने पर फोकस करता है, जिसकी वजह से मैरी को बहुत बुरा लगता है। वो रोने लगती है। मैरी को ऐसे रोता देखकर बुरा वर्कर बहुत हंसता है और फिर वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद भी मैरी दुखी नजर आती है, क्योंकि जो आज उसके साथ होता है वो उसी बारे में सोच रही होती है। लेकिन जब शीशे में वो अपने आप को देखती है, उसके जहन से एकदम वो सोच निकल गई, क्योंकि सीने पर जहाँ पर पहले निशान था अब वहाँ पर बाल उगने शुरू हो गए थे और अब उसे फिक्र होने लगी, क्योंकि दोस्तों जाहिर है ये कोई नॉर्मल चीज तो नहीं थी। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वो बाथरूम में ही बेकाबू हो जाती है। अजीब तरह से इधर उधर अपने आप को मारने लगती है। अब उसका इतना गुस्सा करने की वजह से दोबारा से उसका जिस्म बदलने लगता है, जैसे उसकी हड्डियां उभर कर ऊपर आ रही हों, अपनी शेप और जगह बदल रही हों। लेकिन तभी बाहर उसे अपने डैड की आवाज सुनती है, इसलिए वो जैसे तैसे अपने ऊपर काबू करती है। अगले दिन जैसे ही वो अपनी मॉम को सैर करवाने के लिए बाहर लेकर जाती है, तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है, जो मरी की मॉम से हाथ मिलाता है। लेकिन उसकी मॉम उसका हाथ ही पकड़ लेती है और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, पर वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ वापस ले ही लेता है। घर आने के बाद वो रोजाना की तरह अपनी मॉम को खाना खिलाने लगती है, लेकिन आज वो पहली बार ये काम ठीक से नहीं कर पाती और सारा खाना उसकी मॉम के मुंह पर लग जाता है। वो ऐसा जानबूझ के कर रही थी, क्योंकि रोज रोज वो ये काम करके तंग आ चुकी थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो इसलिए आज वो अपनी मॉम के साथ ये सलूक करने लगी थी। खाना वो उनको खिलाने के बजाय उनके मुंह पर लगाती रहती थी। उसके डैड को ये बहुत बुरा लगता है और वो मरी को ऐसा करने से रोकते हैं कि ये माँ है तुम्हारी, ये क्या फजूल हरकत की है। पर यहाँ वो अपने डैड को भी बुरा भला बोलकर कमरे में चली जाती है कि आप ही खिला लो इसे खाना, मैं रोज रोज ये काम करके पक चुकी हूँ। कमरे में आने के बाद वो अपना निशान दोबारा से चेक करने लगती है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। निशान के बढ़ने के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जाता है। तभी यहाँ उसके डैड भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या तरीका था बात करने का, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है आखिर। तो वो अपने डैड की किसी भी बात का जवाब ना देकर सीधा अपना निशान दिखा देती है, जो देखने के बाद वो दंग रह जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही इस सब के बारे में जानते थे। मरी ने खुद ही आज उन बालों को साफ कर दिया जो उसके निशान पर बने हुए थे। इसके बाद वो उस फाइल को चेक करने लगी जो उसने डॉक्टर से चुराई थी। उसमें सबसे पहले एक शिप की तस्वीर थी, फिर कुछ जख्मी लोगों की जिन पर भारी हमले हुए थे, क्योंकि उनकी चोटों के निशान बहुत गहरे थे। आखिर में वो एक औरत के स्केच को देखती है जिसका पूरा जिस्म बालों से भरा होता है। ये देखकर वो कुछ समझने की कोशिश करती ही है कि तभी अचानक से उसके घर दोबारा डॉक्टर आ जाता है, जो इस बार मरी को इंजेक्शन लगाने आए थे, वही वाला जो उसकी मोम को भी लगता है। यहाँ पर भी वो अपना गुस्सा दिखा ही देती है और डॉक्टर के साथ बहुत बदतमीजी करती है और बगैर इंजेक्शन लगाए वहाँ से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद मरी सीधा उस शिप पर पहुँचती है जिसकी तस्वीर उसने फाइल में देखी थी। शिप के अंदर आने के बाद जब उसने वहाँ चेक किया तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान होते हैं, जिससे वो हैरत में पड़ जाती है और उसके दिमाग में और ज्यादा सवाल आने लगे कि आखिर ये सब है क्या। इन सब बातों का जवाब पाने के लिए वो सीधा फिश पॉइंट के मैनेजर के पास जाती है, क्योंकि ये एक छोटा सा गांव होता है और सभी एक दूसरे के बारे में जानते होते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैनेजर उसे ठीक से कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो उसे लेकर एक क्लब में आ जाता है जहाँ पर डैनियल और बुरा वर्कर सब मौजूद होते हैं। वो लोग यहाँ पर मरी को भी शराब पिलाते हैं। वो थोड़ा नशे में होती है, जिसके बाद डैनियल को लेकर एक खुफिया जगह पर आ जाती है। वो आज बहुत खुश होती है क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी आज वो उसके साथ थी, पर उसके इतना खुश होने की वजह से भी उसके जिस्म पर बाल उगते जाते हैं। वो यहाँ पर इतना बदली कि उसकी आंखों का रंग भी बदल गया और उसकी आंखों का रंग गोल्डन हो गया। घर वापस आने के बाद जब वो सोने के लिए अपने कमरे में गई, तब उसके डैड उसको जबरदस्ती पकड़कर डॉक्टर के साथ मिलकर उसे इंजेक्शन लगाते हैं। ये देखकर मरी की आंख खुल जाती है। उसे बहुत हैरत होती है कि आखिर मेरे डैड ये क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है पर नहीं लगा पाता, क्योंकि तभी उसकी मोम आकर डॉक्टर पर हमला कर देती है। उन्हें पकड़कर बहुत बुरी तरह गर्दन पर काट लेती है, जहां हम यहाँ सारी बात समझ जाते हैं। दोस्तों असल में उसकी मोम एक वेयरवुल्फ होती हैं, यानी आधी इंसान और आधी भेड़िया। और मरी के साथ जो सब हो रहा होता है असल में उसकी मदर की वजह से है, क्योंकि मरी उनकी बेटी है। ये चीज शुरू से ही मरी के अंदर थी, लेकिन जब वो छोटी थी तो इस चीज का पता नहीं लगता था, और अब जब वो बड़ी हो गई है तो उसके सारे असरात दिखने लगते हैं, यानी कि अब वो अपनी माँ की तरह एक अब वेयरवुल्फ बन जाती है।
यही वजह है कि उसके डैड बार बार इंजेक्शन लगाने की बात करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह मरी अपने कंट्रोल में रहेगी। खैर, अब मरी और उसके फादर डॉक्टर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने ही घर की बैक साइड पर उसको दफना देते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि मरी की मॉम ने डॉक्टर को मार दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ हम ये तो जान गए कि उसकी मॉम एक वेयरवुल्फ है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो वेयरवुल्फ बनी कैसे। तो दोस्तों, इसका जवाब वो शिप है जिसके अंदर मरी चेक करने के लिए गई थी। असल में वहाँ पर कुछ रशियन लोग आए थे, मरी की मॉम भी उनके साथ थी, जहाँ पर उन लोगों ने इन पर कुछ उल्टे सीधे टेस्ट किए थे और तभी से वो ऐसी हैं। ये शिप में ही वेयरवुल्फ बन गई थी। यहाँ उन्होंने तमाम रशियंस पर हमला कर दिया था और उनको बुरी तरह मार दिया था। इस बारे में जब गांव वालों को पता चला तो वो मरी की मॉम को मारने के लिए आते हैं। तब मरी के डैड ने उनको अपना कर समझौता किया, क्योंकि वो मरी की मॉम को बचपन से ही जानते थे। लेकिन उनके डैड को ये नहीं पता था कि ये मर्ज उनकी इकलौती बेटी को भी लग जाएगा। मरी अपनी मॉम को नहलाकर अच्छे से साफ कर देती है। उसकी मॉम दुख भरी निगाहों से मरी की तरफ देखने लगती है और आज यहाँ वो पहली बार अपने मॉम के दुख को समझ पाती है। अगली सुबह कुछ गांव वाले उनके घर के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर का कोई अता पता नहीं होता, इसलिए पहला शक मरी की मॉम पर ही जाता है। वो यहाँ मरी की मॉम के कपड़े उतरवाकर चेक करते हैं कि इस वक्त वो जानवर है या इंसान, पर क्योंकि अभी वो इंसान थी इसलिए गांव वालों को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन वो शक भरी निगाहों से बार बार पीछे मुड़कर उसे देखते रहते हैं। शाम को मरी जब काम से घर लौटी तो घर का दरवाजा खुला होता है। उसे बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो जल्दी से घर के अंदर आ जाती है और इधर उधर चेक करने लगती है। यहाँ उसे बाथ टब में अपनी मॉम की लाश दिखती है। उसे देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। उसको काफी गहरा सदमा लगा। जिस बात का डर था वो ही हुआ। उनके काम पर जाने के बाद चुपके से गांव वाले वहाँ आए और उसकी मॉम को मार डाला और ऐसे ही बाथ टब में फेंक के चले गए। मरी काफी टूट जाती है और रोते रोते अपने डैड को कॉल करती है। तब उसके डैड जल्दी से घर आते हैं। अपनी वाइफ की लाश को देखकर वो भी काफी दुख में आ जाते हैं, पर उनको अब इस बात की फिक्र थी कि गांव वालों की नजर अब मरी पर होगी। उसकी मॉम का फ्यूनरल किया जाता है, यानी दफनाया जा रहा था, जहां पर गांव के सभी लोग आते हैं। यहाँ पर मरी और उसके डैड बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हैं, पर जब ये लोग चर्च में थे तो मरी देखती है कि मेरे सारे नाखून उखड़ रहे हैं। हालांकि मरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको छुपाना नामुमकिन था, क्योंकि नाखूनों से निकलने वाला खून हर जगह टपक रहा था। लेकिन आखिर में मरी ने फैसला किया कि अब वो कुछ भी नहीं छुपाएगी। मैं इन सब गांव वालों को बता दूंगी कि मैं भी अपनी मॉम की तरह एक वेयरवुल्फ हूँ, क्योंकि बेशक मैं एक जानवर बन सकती हूँ, लेकिन खुलकर जीने का हक मुझे भी है। दूर बैठा फिश पॉइंट का मैनेजर उसे ऐसा करने से मना करता है और अपना सर नफी में हिलाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि आखिर मरी के इरादे क्या हैं। लेकिन फिर भी मरी ने बारी बारी सबके पास जाकर उनको अपने नाखून दिखा ही दिए। इस वजह से उसके डैड भी काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मौका मिलते ही गांव वाले उसे भी मार देंगे। इसीलिए वो फ्यूनरल को छोड़कर उसे घर ले आते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि खुद पर काबू पाना सीखो और अपनी पहचान को छुपा कर रखो कि तुम भी आधी जानवर और आधी इंसान हो। पर मरी कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो कांच के गिलास को चबा कर दिखाती है। ऐसा करने से उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। अब यहाँ पर वो जितना ज्यादा गुस्सा करेगी उतनी ही जल्दी जानवर बनती जाएगी, यानी वेयरवुल्फ। अगले दिन वो देखती है कि बाल मेरे माथे पर भी उग रहे हैं, जो उसके डैड ने भी देख लिए थे। इसीलिए वो उसे बाहर जाने से रोकते हैं, पर वो उनकी नहीं सुनती और बाहर चली ही जाती है, क्योंकि उसे आजादी चाहिए थी, जो ये गांव वाले उसे नहीं देते। अब वो जब काम पर आई, हर कोई उसके जिस्म पर उगने वाले बड़े बड़े बालों को साफ साफ देखता है। अब इस वक्त तक कोई भी उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन शाम को जब वो घर जा रही थी तो गांव के बहुत सारे लोग उसके पीछे जाते हैं। वो बहुत तेज भागती है और अपनी जान बचाने के लिए किसी घर में जाने की कोशिश करती है, पर वो भी दरवाजा नहीं खोलते। वो वहाँ से भाग जाती है और क्योंकि भागते भागते उसे काफी देर हो गई थी, तो यहाँ अब वो काम लेती है अपने गुस्से से। अब वो थोड़ा आगे बढ़ती है और देखती है कि एक लड़का बाइक पर बैठा है। तब मरी वेयरवुल्फ बनकर झपट कर आती है और उस लड़के पर हमला कर देती है और फिर उसके गले पर काट कर उसको कच्चा ही खा जाती है। अब ये गाँव वाला कोई और नहीं बल्कि वो बुरा वर्कर होता है। इसके बाद वो समझ जाती है कि कोई भी अब उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये हरकत अब वो सबके सामने करती है। वो सोच रही थी कि अब गांव वाले मुझे मारने के लिए जमा हो जाएंगे। तब वो जल्दी से भागकर एक खुफिया जगह पर आती है और छुप जाती है। यहाँ पर उससे मिलने डैनियल आ जाता है, जो उसकी मदद करने आता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि पूरा गांव तुम्हें ढूंढ रहा है। अब उन सब लोगों को अपनी जान का खतरा पड़ गया है, इसलिए वो तुम्हें मार कर ही चैन की सांस लेंगे। फिर चाहे बीच में तुम्हारे डैड ही क्यों ना आ जाएं, वो किसी की नहीं सुनेंगे। आगे डैनियल कहता है कि यहाँ तुम मेरा थोड़ी देर इंतजार करो
मैं कश्ती लेकर आता हूँ, फिर एक साथ हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर उसके जाने के बाद मरी वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाती है। वो कपड़े और अपनी मॉम की तस्वीर रखकर निकलने ही वाली होती है कि तभी सामने से उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा इस बार मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा, जो तुम्हारा दिल चाहे वही करो, किसी की भी मत सुनो और बस आजाद जिंदगी गुजारो। इसके बाद वापस वो उस खुफिया जगह पर आ जाती है क्योंकि डैनियल थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाला था। पर वहाँ पर गांव के कुछ लोग मौजूद थे जो मरी का ही इंतजार कर रहे थे। इनमें फिश पॉइंट का मैनेजर भी शामिल था। थोड़ी ही देर में यहाँ डैनियल भी आ गया और देखता है कि कुछ लोग उसे बेहोश करके अपने साथ ले जा रहे हैं। तो डैनियल भी उनका पीछा करता है और वो समंदर किनारे आ गया जहाँ गाँव के लोग मरी को शिप में बिठाकर समंदर में चले गए। यहाँ उनका प्लान था कि मरी को मारकर वो समंदर में फेंक देंगे, लेकिन उनके प्लान को खराब करने के लिए डैनियल भी शिप में आ जाता है। वो मरी को आजाद कर देता। अब तक वेयरवुल्फ में बदल चुकी थी। अब वो बेशक जानवर बनी हुई थी, लेकिन उसे सही और गलत की पहचान थी। वो बाहर निकली गांव वालों का शिकार करने के लिए। मरी को पकड़ने के लिए जैसे ही वो लोग सामने आए, एक एक करके वो बुरी तरह उन पर हमला करती गई और उन सबको खा गई, क्योंकि इस वक्त गुस्से की वजह से वो बहुत खतरनाक और खूंखार बनी हुई थी। यहाँ आखिर में उसका सामना होता है मैनेजर से, जो अब उसके सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मरी सच्चाई जानती थी, इसलिए वो उस पर भी हमला कर देती है और उसे मार देती है और खा जाती है। यहाँ वो सबको मार देती है। ये सब देखकर डैनियल उससे घबराता है और उसके पास जाने से खौफजदा होता है, क्योंकि जब मरी पीछे मुड़कर देखती है वो बहुत डरावनी लगती है। पर वो डैनियल को कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि डैनियल मेरे लिए खतरा नहीं है, बल्कि ये मुझसे प्यार करता है। इस तरह हम ये समझ पाते हैं कि इसकी मोम को भी अच्छे और बुरे का फर्क था कि कौन मेरे लिए खतरा है और कौन नहीं, और वो भी बेकसूर लोगों को कुछ नहीं कहती थी। लेकिन इन जालिम इंसानों ने उसे अपने डर की वजह से पैरालाइज करके रखा। अब ये सब मरी करना तो नहीं चाहती थी, पर अपने बचाव में उसे ऐसा करना पड़ा। उसे बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। तब डैनियल उसे गले से लगाकर हौसला देता है और वो लोग इस शिप को लेकर आगे निकल गए एक नई दुनिया बसाने के लिए। और इसी के साथ ये फिल्म की कहानी इधर ही खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको इस मूवी का रिव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को टाइम पर देख सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।